My dear students, in this video I'm going to explain you about sum or difference of two cubes. Sum or difference मतलब if you have the two numbers and their cubes, then you can take the sum or you can take the difference. I have written here formula like a and b are the two numbers, then a cube plus b cube is equal to a plus b in one bracket and a square minus ab plus b square in other bracket. This is the factorization of a cube plus b cube. Okay. Then the second one, if you have the difference a cube minus b cube, then you have only the change with the plus sign you write the minus sign, means a minus b, and where the minus sign you write the plus sign, that is a square plus ab. So by this way you can write the formula. A square quantity cannot be negative, that is why in both the cases these are the plus. ये पूरी इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस. Only the change in the single variable, single power. So a cube plus b cube and a cube minus. Now here the question how to factorize. This is the factorization. How to factorize the given questions. I have written here some questions and using the formula you have to factorize it. There are 6 questions, especially in the previous video I have made and explained about the factorization of the different types of the terms like the trinomials, difference of the squares, and taking means the method also, taking common, making group, like this. So if you see the previous videos you can get understand. Also, if you like the content, then you can subscribe the Study Bright channel. Now the question number 1, 64x cube plus 1, you have to, I will solve one by one. 64x cube plus 1, so it is the solution. 64, before that I change the color. 64x cube plus 1 कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली इन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ए की पावर 3 दैट इज होल क्यूब, इट मस्ट बी होल क्यूब. यहाँ पे 64 है तो x की पावर 3 है, इट इज 1 ओनली. कैन यू राइट 64 एज 4 टू द पावर 3? यस. और x टू द पावर 3 है तो यू कैन राइट दिस वन द फुल एज x टू द पावर 3. क्यों? क्योंकि अब ये पावर 3 इंडिसेस में आपने पढ़ा होगा तो 4 के साथ भी है और x के साथ में, प्लस 1 होल पावर 3, 1 का कोई भी पावर ले, दैट इज नॉट डजेंट मैटर. तो लेकिन फॉर्मूला बन गया एंड दिस फॉर्मूला इज दैट यू नो ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर. हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूला लिखेंगे तो लर्न भी होते रहेंगे, तो फॉर्मूले और मार्क्स भी नहीं कटेंगे, तो फॉर्मूले लिखने ज़रूरी कि वो विच फॉर्मूला यू आर अप्लाइंग दैट यू मस्ट राइट. नाउ यूज दिस इज ए एंड दिस इज बी. Directly you can write in the formula the a plus b and a minus b. So it will be 4x plus 1 in one bracket. Use the middle bracket for the second one क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले हम स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस a means 4x into 1 and plus 1 square. Clear? Then again simplify this one and open the expand this square, so this will be 16x square plus 4x and plus 1. This is the factorization, means you cannot do the further. अब इसके आगे फैक्टराइज नहीं होगा इसलिए इतना ही छोड़ेंगे. The second question is, you can see the second one is 32x to the power 4 minus 500x. तो क्वेश्चन नंबर 2 here 32x to the power 4 minus 500x.
जैसे इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई कॉमन नहीं लेना था, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, बट इफ यू हैव कॉमन एनीथिंग दैट यू मस्ट टेक कॉमन। सबसे पहले रिड्यूस करना सीखें। तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 32 है और 500 है। एनी डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉमन, यस। 4 से डिवाइड होगा ये, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यस। तो 4 यू कैन टेक कॉमन। तो 4 and then in x की power 4 and x, which one is common, x is common. What you will get, 8x cube minus 125, this in second bracket. अभी तक आपने ये देखा था कि इसमें कहीं भी कोई क्यूबिक टर्म नहीं था, मतलब हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। नाउ यू कैन सी इन द सेकेंड ब्रैकेट दिस 8x cube of 125 you can change in 2x whole cube, क्योंकि 8 is the power of cube of 2 minus cube of 5, that is 5 cube is 125. Now apply the formula a cube minus b cube is equal to क्या होते हैं, a minus b, a square plus ab plus b square. In every question you must write the formula. चाहे आप घर पे ही लगा रहे हो, कॉपी पे एग्जामिनेशन ना हो, तब भी आप लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ यूज़ द फॉर्मूला। तो 4x फर्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 5, क्योंकि a इज 2x एंड b इज 5। इन सेकेंड ब्रैकेट 2x होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5 एंड प्लस 5 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नाउ सिंप्लीफाई 2x minus 5, 4x square plus 10x and plus 25. You can see these three factors you are get. एक तो 4x हो गया आपका, 2x minus 5 हो गया, and the third one is this. This is the factorization. Clear? This is the answer. Now the third question is 27x plus y whole cube x plus y whole cube and plus 8 2x minus y whole cube. This is, अगर इसमें आप देखें तो इन द ब्रैकेट इट इज x प्लस वाई होल क्यूब। क्या इसमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग सकता है? नहीं, अभी नहीं लग सकता, बिकॉज दिस इज नॉट द 27 क्यूब में नहीं है। यू हैव टू चेंज द 27 ऑल्सो इन पावर ऑफ 3। 8 को भी करना है, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, 3 to the power 3, yes, and then x plus y already in power of 3, then take the whole power as 3। अब आप इसको ऐसे करें, and then similarly this is the power of a cube of 2 means 8, and then use the whole cube। आप क्यूब अंदर ले जाएंगे तो यही चीज आ जाएगी। now 3 you multiply here inside the bracket, so it will be 3x plus 3y, okay, whole cube plus 4x minus 2y whole cube. You can see this is exactly, this is the a and this is b, okay, exactly a cube plus b cube। तो हम फॉर्मूला फिर लिख दे रहे हैं, a cube plus b cube is equal to a plus b in one bracket, a square minus ab plus b square in other bracket. Now use the formula and then factorize it। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x plus 3y, ओके, प्लस b की जगह पे 4x minus 2y in one bracket। now second bracket you will write here, क्योंकि इधर जगह कम पड़ सकती है, तो आई एम राइटिंग हियर इनटू करके, ये इनटू यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इनटू सेकेंड ब्रैकेट, ए स्क्वायर मीन्स 3x प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस a means 3x plus 3y and the b means 4x minus 2y, then plus b square, मतलब 4x minus 2y whole square, and use the
तो अब आप देख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्रैकेट इज दिस, ओके, एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज द फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, ओके। नाउ सिंप्लीफाई वन बाई वन। पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करें तो 3x प्लस 4x 7x, 3y माइनस 2y y, दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ द सेकेंड वन, अब इसको आप एक्सपेंड करें तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एंड प्लस 18xy यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। देन मल्टीप्लाई दीज टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे उधर ज़्यादा चला जाएगा, चलिए हम लिखे दे रहे हैं 3 इंटू 4, पहले माइनस साइन लगेगा, 3 इंटू 4 12x स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 6xy, देन 3 into 4xy means plus minus 12xy and 3y into minus 2y minus minus plus 6y square, clear, plus again expand this one a minus b whole square, तो 16x square plus 4y square and minus 16xy, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं द सेकेंड ब्रैकेट इज वेरी लॉन्ग, बट डोंट वरी, क्योंकि अब आपको छोटा हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये तो फर्स्ट ब्रैकेट है, 9x स्क्वायर एक ये है आपका, हम इसको कलर चेंज करके आपको बता दे रहे हैं तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़। 9x स्क्वायर है ये आपका एक जगह पे, and the 12x square minus 12x square is another place, or फिर 16x square is another place. These three you can add and subtract, तो 16 plus 9 25 minus 12, तो कितना हो गया 13x square, okay. then 9y square and 4y 13y square एंड प्लस 6y स्क्वायर, 13 6 19y स्क्वायर, देखिए कितना कम हो गया। एंड नाउ एक्स वाई टर्म्स, तो 18xy 6xy 24xy हो गया, 24 माइनस 12 तो 12xy और माइनस 16 तो माइनस 4xy, दिस इज द फैक्टराइजेशन, ओके। सिंप्लीफिकेशन इज मस्ट, और ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4, इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी, you can factorize this one, okay, directly use the formula, and this is the another bracket, clear। तो a plus b, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लिख लें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस द वन ब्रैकेट a plus b, clear। you can see this a plus b and a plus b in both the terms, तो you can take common, तो a plus b is common। अब आपके इसमें बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस आफ्टर टेकिंग कॉमन यहाँ पे क्या मिलेगा इस जगह पे 1, दिस इज द फैक्टराइजेशन, सिंपल, इसमें कहीं कुछ ज़्यादा नहीं करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, you can see the 5 question, x cube plus x plus 2, x cube plus x plus 2। इसमें कहीं से कोई ना कॉमन दिख रहा है ना कोई फैक्टराइजेशन, 3 टर्म्स तो हैं, बट दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। यू कैन नॉट यूज द ट्राइनोमियल मेथड, ऐसे कुछ नहीं कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, इसमें अपना दिमाग लगाना है, और बिकॉज इट इज क्यूबिक टर्म तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्यूब और होगा जिससे कि ये फैक्टराइज हो सके। कैन यू मेक एनी टर्म ऐड आ सब्ट्रैक्ट विद एक्स क्यूब, तो वो जो है क्यूब बन जाए और फार्मूला बना सके ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इफ यू चेंज दिस टू एज 1 प्लस 1, तो व्हाट यू विल गेट,
x cube plus 1 in one bracket and x plus 1 in other bracket. अब आप देख सकते हैं कि 1 plus 1 that is 2, there is no change in the question, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फार्मूला ज़रूर बन गया बिकॉज इट इज़ 1 क्यूब यू कैन राइट एंड देन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस 1 इन प्लेस ऑफ ए, मतलब ये हम इधर लिखे दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. नाउ इन प्लेस ऑफ ए दैट इज x, इन प्लेस ऑफ बी 1, तो ए की जगह x, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर प्लस ये जो आपका x प्लस 1 था ये यहाँ पे लिखा ही जाएगा x प्लस 1 मोर सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड प्लस एक्स प्लस 1. कैन यू टेक कॉमन अगेन x प्लस 1? बिल्कुल ले सकते हैं. तो इन द सेकेंड ब्रैकेट यू विल गेट प्लस, ये तो इतना पार्ट था, अब ये कॉमन होने के बाद में क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बट दिस इज नॉट द आंसर. अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, दिस इज द फैक्टराइजेशन. क्लियर? तो फैक्टराइजेशन जब भी होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा फैक्टर्स के अंदर, फिर फर्दर ना कोई चीज़ कॉमन हो सकती है ना कोई चीज़ आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं. द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स. हाउ टू फैक्टराइज इट? अब इसमें यू कैन नॉट अप्लाई द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्यूब वाला भी फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं, कॉमन भी नहीं ले सकते हैं. तो हाउ टू फैक्टराइज इट? कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें डायरेक्टली अपना मैथ ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यू मस्ट बी अवेयर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो इसके लिए आप सबसे पहले इसमें आप एलसीएम ले लीजिए. तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, मल्टीप्लाई हियर विद एक्स क्यूब माइनस 8. यस, ओके. एंड देन 1 बाई एक्स इज कॉमन, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी. अब आप देख सकते हैं कि इन दिस द एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब यू कैन राइट, दिस इज द ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड यूज द फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इन प्लेस ऑफ ए एक्स, इन प्लेस ऑफ बी 2, तो अब इसमें आप रखें डायरेक्टली, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 2 एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 एंड प्लस 2 स्क्वायर. क्लियर? तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. दिस इज द फैक्टराइजेशन. ये 1 अपॉन एक्स इज द टाइप ऑफ फैक्टर, दिस इज द फैक्टर, मीन्स there is no plus or minus sign in between the two factors. तो ये आपका हो गया ये फैक्टराइजेशन. इसके बाद नहीं कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन. तो by this way you can see the all the questions with solution and it is very simple. Thank you so much.